Hi guys, welcome back to Loggery. Today I'm going to discuss some of the legal current affairs for 29th and 30th June 2021. This is going to be the last lecture for June 2021. All the other, I think 4 to 5 lectures are up. If you want to see those lectures, I'll leave the link in the description box. In this video, I'm going to discuss the famous case, the famous espionage case, ISRO espionage case that is going to be discussed in this video. Then we're going to discuss the consumer draft rules, some of the changes that are going to be might come in the consumer law of India, right? So there are various other judgments, important judgments, the migrant workers Supreme Court judgment that I'm going to discuss in detail. So basically in this video I pick up the important legal current affairs, that could be judgments, that could be any news wherein law is discussed, and I will explain not only the news or the judgment but also the laws related to that news or judgment. So this is helpful for every exam, be it LLB, LLM, AILET, CLAT, any exam, Judiciary, UPSC, UGC, NET. You are an advocate. If you want to stay updated, you want to know what is going on, you should watch this video. For law students, you will get so many topics to write research papers on. So yeah, do watch this video. Let's get started. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. 1994 espionage case, SC orders CBI probe in framing of Nambi Narayanan. So we are going to check out the background. So this case is famously known as ISRO espionage case. So let's get started. 1994 के अंदर मालदीवियन नेशनल मरियम रशीदा अरेस्ट की गई थी. तो एक मालदीवियन नेशनल को अरेस्ट किया गया था. क्यों अरेस्ट किया गया था? अरेस्टेड इन थिरुवनंतपुरम फॉर अलेज्डली ऑब्टेनिंग सीक्रेट ड्राइंग्स ऑफ इसरो रॉकेट इंजन्स टू सेल टू पाकिस्तान. ठीक है ना. इसरो की रॉकेट इंजन्स की ड्राइंग थी जो उनके पास मिली थी एंड शी वाज गोइंग टू सेल इट टू पाकिस्तान, सीक्रेटली सेल इट टू पाकिस्तान, राइट. नाउ हु हैज गिवन दिस ड्राइंग? तो क्या था कि ये जो रॉकेट इंजन था इसकी ड्राइंग पहुंच गई थी, एक मालदीवियन नेशनल के पास मिली थी और उसको अरेस्ट कर दिया गया था. एंड केस क्या था कि ये कैसे पहुंची उनके पास, किसने लीक करी है ये जो इमेजेस हैं, ये जो ड्राइंग्स हैं वो किसने लीक करी हैं. ठीक है ना. उसके बाद नवंबर 1994 में नम्बी नारायणन, नाउ दिस पर्सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट एट इसरो. So he was working for ISRO, Nambi Narayanan. He was arrested along with deputy director and various other people. Right now, in 1995, ISRO scientists and businessmen were released on bail. The Maldivian national continued to be in custody. ठीक है ना. तो जो ISRO के साइंटिस्ट थे उनको बेल मिल गई. ठीक है. April 1996 में CBI कहती है says no evidence to back the charges raised by the Kerala police and that espionage case is false. The central body files report. Now CBI क्या कहती है कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं हमें उनके अगेंस्ट, मतलब दे आर नॉट द पीपल जिन्होंने ये इसरो रॉकेट इंजन की जो ड्राइंग है वो लीक करी है, हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है. ठीक है ना. इनको फॉल्सली फंसाया जा रहा है ऐसा लग रहा है. ठीक है ना. ये एक फॉल्स केस है. तो केरला पुलिस ने मतलब ये जो चार्जेस थे इसरो साइंटिस्ट के अगेंस्ट, ये केरला पुलिस ने फ्रेम करने की कोशिश करी थी. मतलब उन्होंने कहा था कि इसरो के साइंटिस्ट ने ये सब कुछ किया है, राइट. बट सीबीआई ने कहा नहीं, साइंटिस्ट ने नहीं किया, कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है, राइट. उसके बाद क्या हुआ? मई के अंदर व्हाइल एक्सेप्टिंग सीबीआई रिपोर्ट, कोर्ट एक्विट्स ऑल अक्यूज्ड इन द स्पाई केस. अक्यूट का मतलब प्रूव नहीं हो पाया, कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया. तो सीबीआई ने कहा कि ये जो केस है इसके अंदर हमें इसरो साइंटिस्ट के अगेंस्ट कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो इनका एक्विटल कर दो बिकॉज इन्होंने ये नहीं किया है. समवन एल्स हैज डन दिस, राइट. नाउ जून के अंदर क्या होता है? 1996 के अंदर केरला गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कंडक्ट री इन्वेस्टिगेशन. जून के अंदर केरला गवर्नमेंट कहती है कि री इन्वेस्टिगेट करा जाए इस केस को, ऑफ द केस बाय द स्टेट पुलिस विच वॉज चैलेंज्ड बाय चंद्रशेखर.
ठीक है ना. Now one of the persons named Chandrasekhar, who was the Russian Space Agency, Indian representative of a Russian Space Agency, he challenged this कि आप री इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो जब सीबीआई ने बोल दिया कि इसरो के साइंटिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है. बट केरला गवर्नमेंट ने कहा, राइट. हाई कोर्ट ऑफ केरला डिसमिसेस द चैलेंज, अपहेल्ड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन व्हिच वाज लेटर क्वैश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो हाई कोर्ट ऑफ केरला ने कहा कि ठीक है, अगर केरला गवर्नमेंट कह रही है इन्वेस्टिगेट करने को करने दो, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. तो अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं केरला गवर्नमेंट और केरला पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसरो के साइंटिस्ट को फंसाने की कोशिश कर रही थी. तो वी कैन स्मेल दैट कि कुछ तो गड़बड़ था, राइट. क्योंकि मई 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अवार्ड्स कॉम्पनसेशन ऑफ ₹1 लाख टू नारायणन एंड अदर्स हु वर डिस्चार्ज इन द केस, डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू पे द अमाउंट. अब क्योंकि केरला पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला था और बिना एविडेंस के कहीं ना कहीं उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट को फ्रेम कर दिया था और ये प्रूव हो गया था, तो ₹1 लाख कॉम्पनसेशन पे करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसरो के जो साइंटिस्ट थे उनको, राइट, नारायणन को. नाउ अप्रैल 1999 में नारायणन अप्रोचेस द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC को अप्रोच करते हैं, क्लेमिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम द स्टेट फॉर द मेंटल एगनी एंड टॉर्चर सफर्ड बाय हिम. वो NHRC को अप्रोच करते हैं कि मुझे कॉम्पनसेट करना चाहिए फॉर मेंटल एगनी एंड द टॉर्चर दैट आई हैव गॉन थ्रू, राइट. नेक्स्ट क्या होता है, 2001 के अंदर NHRC अवार्ड्स एन इंटरिम कॉम्पनसेशन ऑफ ₹10 लाख. 10 लाख का अवार्ड कॉम्पनसेशन दिया जाता है, इंटरिम कॉम्पनसेशन दी जाती है नारायणन को. 10 लाख की कॉम्पनसेशन दी जाती है, राइट. नाउ सितंबर 2012 के अंदर हाईकोर्ट डायरेक्ट्स द स्टेट टू पे ₹10 लाख टू नारायणन. ये सब कुछ होता है. 2015 के अंदर HC लीव्स, हाई कोर्ट लीव्स इट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर और नॉट द CBI's रिपोर्ट फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द अरिंग पुलिस ऑफिसर्स. उन्होंने तो CBI ने एक रिपोर्ट फाइल करी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक्शन लेना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा क्यों हुआ, लाइक उन्होंने उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था, फिर उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट को क्यों फ्रेम किया, क्या सीन क्या था, ठीक है ना. तो ऐसा बोला CBI ने और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया कि आपने एक्शन लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस मिली हुई थी और वो इसरो के साइंटिस्ट को फंसाने की कोशिश कर रही थी, राइट. अप्रैल 2017 के अंदर द सुप्रीम कोर्ट बिगिंस हियरिंग ऑन नारायणन्स प्ली सीकिंग एक्शन अगेंस्ट फॉर्मर केरला DGP CB मैथ्यूज एंड अदर्स हु हैड प्रॉब्ड द मैटर. तो नारायणन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि क्यों ना एक्शन लिया जाए केरला के DGP के अगेंस्ट, बिकॉज इतना बड़ा केस था कि इसरो की इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च थी जो चल रही थी, ठीक है ना. वो रिसर्च वहां से गई कहाँ, मतलब वो ड्राइंग वहां से निकली कैसे और फिर वो पाकिस्तान के पास मतलब कोई देना चाहता था उसको. तो ये जो है ये बहुत बड़ा मतलब डिफेंस का जो हमारे सीक्रेट्स हैं वो कोई लीक कर रहा है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है. तो आपको एक्शन लेना चाहिए स्टेट पुलिस के अगेंस्ट कि उन्होंने किसी को बचाने के लिए या अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी. तो इसमें से यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो किसी को सेफगार्ड कर रहे थे, राइट. 3rd May 2018 3 judge bench comprising of Chief Justice so and so and Justices so and so says it is considering awarding Narayanan a compensation of ₹75 lakh and restoring his reputation. ठीक है ना. तो कॉम्पनसेशन की बात चलती है, 10 लाख से 75 लाख पहुंच जाती है. उसके बाद 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन द plea. CBI tells SC it was ready for a Supreme Court monitored probe into the allegation. वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है कि एक्चुअल में पुलिस ने ऐसा किया क्यों, कौन इन्वॉल्व हो सकता है, राइट. सितंबर 14 को SC अवार्ड ₹50 लाख कॉम्पनसेशन टू नारायणन, जो इसरो साइंटिस्ट थे जो मेन, उनको 50 लाख कॉम्पनसेशन पे कर देता है सुप्रीम कोर्ट. यहाँ तक तो ये हमें स्टोरी पता चलती है, कॉम्पनसेशन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ खत्म. अब मेन केस कहाँ से उठता है दोबारा. 5 अप्रैल 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच करती है सुप्रीम कोर्ट को. जो हमारी सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है. क्या कहती है, सीकिंग कंसिडरेशन ऑफ अ रिपोर्ट फाइल्ड बाय अ कमिटी रिगार्डिंग द रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन द 1994 केस. कि एक रिपोर्ट है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो ये रोल प्ले किया है, मतलब पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस हैं और वो रिपोर्ट को कंसिडर किया जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए. ठीक है. जून 2021 के अंदर क्या होता है
कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देती है केरला पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कि उन्होंने क्यों फ्रेम किया, वो क्या किसी को बचा रहे थे, क्या था, वाई इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस है। हमारे सीक्रेट ड्राइंग्स कोई ले जाकर के पाकिस्तान को देने वाला था, ये एक बहुत ही बड़ा चीज है, राइट? सो दिस इज द इंटायर case. Now CBI is investigating and is trying to find the things. Like this is a very big step and it is necessary also because हमारे secret कोई बाहर लेकर जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कर रहा है, ठीक है? Who is S. Nambi Narayanan? S. Nambi Narayanan is an aerospace engineer. He was working for ISRO, that is Indian Space Research Organization. He was awarded Padma Bhushan and he is the one who is instrumental. He's the one who developed Vikas engine that would be used for the first PSLV that India launched. So he is one of the greatest minds of India. He's one of the greatest scientists of India, right? And he was framed, which is a big thing again. Background of the case: in 1992, India signed an agreement with Russia for transfer of technology to develop cryogenic fuel-based engines and procurement of 2 such engines for rupees so and so. However, it did not materialize after the US President George H.W. Bush wrote to Russia raising objections against the transfer of technology and even threatening to blacklist the country from the Select 5 क्लब, ठीक है ना? तो रशिया से हम ये इंजन ले रहे थे बट यूएसए ने नहीं लेने दिया। हम बेसिकली इंडिया ने एक और अग्रीमेंट साइन किया कि हम वो फैब्रिकेट करेंगे 4 क्रायोजेनिक इंजन्स अलोंगसाइड 2 मॉकअप्स फॉर, ठीक है? तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इसरो, अब इतने में क्या हुआ, इसरो हैड ऑलरेडी रीच्ड अ कंसेंसस विद केरला हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड व्हिच वुड हैव प्रोवाइडेड द चीपेस्ट टेंडर फॉर फैब्रिकेटेड इंजन्स बट दिस फेल्ड टू मटेरियलाइज ड्यू टू स्पाई स्कैंडल ऑफ 1994। मतलब हम ये इंजन खुद ब खुद बना लेते और सब कुछ कर लेते ऑन टाइम और सब कुछ हो जाता, बट वो मटेरियलाइज क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ दिस केस, क्योंकि केरला पुलिस ने इसरो के साइंटिस्ट को कहा कि इन्होंने किया है सब कुछ जो किया है और वो टाइम जो था वो हमारा चला गया, राइट? Espionage और spying is the act of obtaining secret और confidential information from non-disclosed sources, ठीक है ना? जो secret information निकालते हैं। अब वो जो ड्राइंग थी इंजन की वो बहुत ही सीक्रेट थी, वो किसी ने निकाली इसरो के ऑफिस में से, ठीक है ना? और फिर उसके मालदीवियन सिटीजन के पास, नेशनल के पास पहुंची एंड वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास जाने वाली थी। तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाली गई, मतलब कोई स्पाइंग कर रहा था, ठीक है ना? अब इसरो के अंदर था, वो बाहर था, क्या था ये किसी को नहीं पता आज तक, बट हाँ वो इसरो के साइंटिस्ट नहीं थे, वो मेन साइंटिस्ट नहीं थे जो उस चीज पे वर्क कर रहे थे, ठीक है ना? दैट इज व्हाट इज स्पाइनेज और स्पाइंग भी कहते हैं, और जो पर्सन ये करते हैं उसको क्या कहते हैं? एजेंट, स्पाइनेज एजेंट या फिर स्पाई भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो जो इन्फॉर्मेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ द इन्फॉर्मेशन ली जाए, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो हो और कोई उसको ले जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्पाइनेज, ठीक है? के अंदर स्पाइनेज या स्पाइंग से लेके क्या लॉ है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एक्सटेंड्स टू ऑल मैटर्स ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन गवर्नेंस इन द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस सेम। इट ब्रॉडली डील्स विद 2 एस्पेक्ट्स, स्पाइंग और स्पाइनेज, कवर्ड अंडर सेक्शन 3 एंड डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5. Secret information can be any official code, password, sketch, plan, model, article, note, document or information. Under section 5, both the person communicating the information and the person receiving the information can be punished. तो Official Secrets Act 1923 जो है वो हमारा स्पाइनेज से डील करता है, right? Ensure that no migrant worker goes hungry. Supreme Court instructs government. Court sets July 31st deadline, tells states to implement one nation one राशन कार्ड। अब एक वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन किया है वन नेशन वन राशन कार्ड क्या होता है। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक देखिए क्या होता है, अगर कोई पर्सन दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो दिल्ली की राशन शॉप पे जाता है जहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट पे राशन मिलता है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से राशन लेकर आते हैं। आप दिल्ली के रजिस्टर्ड हो तो दिल्ली के ही वहाँ पे राशन शॉप पे जाओगे और आपको राशन मिलेगा। राशन कार्ड होता है ना हमारा, जो हम आइडेंटिटी के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद मान लीजिए अब ये दिल्ली का जो पर्सन है उसका जो घर है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना? कहो अ पर्सन इज लिविंग इन दिल्ली, वर्किंग इन दिल्ली, बट एक्चुअल हाउस महाराष्ट्र में है। कोविड-19 हुआ तो वो अपने विलेज में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना? बट वो रजिस्टर्ड कहाँ पे? दिल्ली में। अब वो कहाँ पे आ गए? महाराष्ट्र। क्या वो राशन लेने दिल्ली जाएंगे? नहीं। अब उनको महाराष्ट्र में तो राशन मिलेगा नहीं, बट
ये स्कीम क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्लीज ये रिमेंबर, बहुत जरूरी है, इट इज इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होगा कि वो पर्सन कहीं पे भी जाए, चाहे वो महाराष्ट्र जाए, चाहे वो कर्नाटका जाए, चाहे वो कहीं पे भी जाए, पंजाब हरियाणा कहीं पर भी जाए, वो उनको राशन मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो हर जगह, जो एक राशन कार्ड है वो हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर विलेज के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर वो राशन कार्ड चलेगा। तो कोई भी पर्सन कहीं पर भी है, अगर वो राशन कार्ड के लिए, राशन मतलब के लिए एलिजिबल है, सब्सिडी रेट पे अगर उसको राशन मिलना चाहिए, तो वो कहीं पर भी जाकर वो ले सकता है इन इंडिया। कोविड जब लॉकडाउन लगता है, जब माइग्रेंट्स अपने अपने घर जाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेडलाइन दी है कि 31 जुलाई तक हर स्टेट, हर यूटी इस स्कीम को अप्लाई करेगी। डिस्कस बोथ ऑफ दीज स्कीम्स, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज बीन डिस्कस्ड, एंड अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है, एक डेट दे दी है, ठीक है ना। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम तो 31 जुलाई 2021 तक पूरे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड जो नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है और जो स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट करनी है। हमने सोशल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में 2 वीडियोस में बात करी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो उसका जो पोर्टल है, उसकी जो वेबसाइट है, वो कह रहे हैं कि आपको तैयार करनी है 31 जुलाई तक, एंड 31 दिसंबर तक सभी जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है अनऑर्गेनाइज लेबरर्स का, माइग्रेंट वर्कर्स का जो डाटा है वो इकट्ठा हो जाना चाहिए, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर, राइट। करते हैं सेबी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर है, बहुत ज़्यादा बात करी जा रही है। रिसेंटली अगेन जुलाई के अंदर वो न्यूज़ के अंदर था, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं सारा केस की बैकग्राउंड क्या है केस का, एंड अपडेट्स आपको वीडियोस में मिलती रहेंगी। सो वेन एवर आई टॉक अबाउट अ केस, मतलब जैसे मैं अब एक केस आपको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है ना। तो जब उसका अपडेट आता है तो मैं वो एक स्लाइड के अंदर ही बता देती हूँ, तो इसलिए हर लेक्चर देखा करो अगर आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है, अगर यू वांट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट। Securities Appellate Tribunal gave an interim relief to Franklin Templeton. अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक कंपनी है जिसका जो इन्वेस्टमेंट का काम करती है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स और ये सब कुछ। तो क्या हुआ, इंटरिम रिलीफ दिया। इंटरिम मतलब टेम्परेरी, इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेरी रिलीफ दिया किसने, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल ने, बाय स्टेइंग द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ऑर्डर बारिंग इट फ्रॉम लॉन्चिंग एनी न्यू डेट स्कीम्स फॉर 2 years, ठीक है ना। तो सेबी ने ऑर्डर कर दिया था कि 2 years तक ये जो कंपनी है कोई भी न्यू डेट स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। तो ये जो ऑर्डर है ये सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल ने अभी होल्ड पे रख दिया है, स्टे कर दिया है, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों किया टेम्पल्टन के साथ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ सेबी ने, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। द ट्राइब्यूनल हैज आस्क्ड एफडी टू डिपॉजिट ₹250 crore within 2 weeks into an interest bearing escrow account. Details of such account to be submitted to SEBI. Thereupon the penalty of ₹5 crore would be stayed, SAT orally said. सैट सेट ओरली। तो बेसिकली अब इन्होंने क्या किया कि जो इनके साथ इतना कुछ हुआ एंड सब कुछ, सेबी ने ऐसा क्यों किया, देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस। जून 7, 2020 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैड कम अप विद एन ऑर्डर होल्डिंग फ्रैंकलिन टेम्पल्टन गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग, ठीक है ना। तो कुछ गलत किया इन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग करी। दिस ऑर्डर प्रिटेन्स टू द केस ऑफ फंड हाउस सडनली वाइंडिंग अप 6 ऑफ इट्स डेट स्कीम्स इन अप्रैल 2020। तो इन्होंने अपनी 6 डेट स्कीम्स जो थी वो सडनली वाइंड अप कर दी, ठीक है ना। डेट स्कीम्स वाइंड अप कर दी। अब फिर क्या हुआ अगर डेट स्कीम्स वाइंड अप कर दी। जून 14, 2020 द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टीज ऑन सीनियर ऑफिसर्स ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट इंडिया। तो इन्होंने जून 7 को ये किया और जून 14 को इनके अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया। इन द इन्वेस्टिगेशन, अब क्यों किया इनके साथ जो एक्शन लिया गया, इनके अगेंस्ट क्यों एक्शन लिया गया। In its investigation, the auditors also found that some senior employees had withdrawn their own money from these schemes. जो ये 6 schemes wind up करी गई, जो खत्म करी गई, इनमें से जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपना पैसा पहले ही निकाल लिया था, ठीक है ना। तो ये चीटिंग नहीं हुई कि सीनियर ऑफिशियल्स ने अपना पैसा पहले ही निकाल लिया, तो ये चीटिंग नहीं हुई दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है ना। अब डेज एंड वीक बिफोर दे वर फाउंड अप, ठीक है ना, डेज एंड वीक कुछ दिन पहले ही उन्होंने पैसे निकाले। इट वॉज
auditors found that these senior officials had access to non-public information about how bad the state of these scheme was. Again, ये cheating नहीं हुई कि उनके पास कुछ secret information थी जो कि किसी और के पास नहीं थी, बाकी सब investors के पास नहीं थी जिन्होंने इन schemes में invest किया था, और इन officials के पास थी, उन्होंने ये अपने पैसे निकाल लिए और बाकी सबके पैसे तो उनको लॉस हुआ. कुडवा, his wife and mother withdrew rupees. तो ठीक है, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स थे और उनकी फैमिली की इन्वेस्टमेंट थी इन स्कीम्स के अंदर, उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए और बाकी सबके पैसे जो था उनको लॉस हुआ. राइट नाउ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से पूछा गया कि वाई, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वाइंड अप क्यों करी स्कीम्स. ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से. ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को गुस्सा चढ़ गया, इन्वेस्टर्स वर एंग्री. मीनवाइल प्रिज्यूमेबली ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द इन्वेस्टर्स ऑन इन वेरियस हाई कोर्ट, सेबी स्टार्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन द वे द फंड्स वर मैनेज्ड. तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी. इन अक्टूबर कर्नाटका हाई कोर्ट रूल लेटर अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द ट्रस्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, दैट द ट्रस्टीज मस्ट टेक यूनिट होल्डर्स कंसेंट बिफोर वाइंडिंग अप द स्कीम. जिन्होंने इन्वेस्ट, यूनिट होल्डर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर्स हैं, उनका कंसेंट लेना जरूरी है कि हम स्कीम वाइंड अप कर रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं. दिस क्लोज्ड वन ऑफ द 2 चैप्टर्स. अब ये क्यों क्लोज हो गया एक चैप्टर्स, देखो 2 चीजों में फंसे. एक तो ये फंसे कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले ही पैसे अपने उस स्कीम में से निकाल लिए क्योंकि उनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी. ठीक है ना, दूसरा क्या था, एक तो ये था, दूसरा क्या था कि इन लोगों को परमिशन लेनी थी इन्वेस्टर्स से. ठीक है ना, अब इसमें तो ये लोग बच गए. क्यों बच गए, क्योंकि अ मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स अप्रूव्ड वाइंडिंग अप एंड मनी बिगैन टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जितने इन्वेस्टर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि ठीक है ये वाइंड अप हो रहा है, इसको कर दो, और जो मनी, जो बचा खुचा पैसा था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन्वेस्टर्स के बीच में होने लग गया. ठीक है ना. So far, the fund house has returned rupees 17,214 crore to its investors. तो ये तो बच गया, बट मेन प्रॉब्लम कहाँ पे फंसी है ये कंपनी, जो ये सीनियर ऑफिशियल्स ने पैसे निकाले हैं. ठीक है ना. The second thing was to establish whether the fund house mismanaged its schemes. After a lot of back and forth among all stakeholders, SEBI finally issued its order where it found Franklin Templeton guilty of mismanaging its fund. These orders are arguably the most significant for the MS industry. तो उन्होंने देखा कि जो फंड्स हैं, जो लोगों ने फंड्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, वो फर्दर इन्वेस्ट करते हैं सो दैट अर्न कर सके. तो सेबी ने क्या कहा कि येस दीज फंड्स वर मिसमैनेज्ड, एंड ये भी कहा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ये लॉ है कि जब भी कोई स्कीम वाइंड अप होगी तो आप अपने यूनिट होल्डर्स से परमिशन लोगे. रेगुलेशन 18 है. ठीक है ना, रेगुलेशन 18 यही कहती है कि आपको अपने यूनिट होल्डर्स से कंसेंट लेना पड़ेगा, बट नॉर्मली कोई लेता नहीं था. बट अब क्योंकि ये केस उभर कर आया तो अब इट इज, रूल तो था बट नो वन वॉज फॉलोइंग द रूल, बट अब ये मैंडेटरी हो गया है कि रूल फॉलो करना पड़ेगा. व्हाट इज इतत-ए-दीवार. ठीक है ना, इतत-ए-दीवार is an e-filing portal of income tax appellate tribunal called इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल. ई फाइलिंग क्या होता है, ई फाइलिंग होता है जब ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हो, मतलब आप अपने स्कैन करते हो पिटिशन को जो आपने फाइल करना है ट्रिब्यूनल के अंदर, और वो ऑनलाइन ही फाइल कर देते हो. पहले क्या होता था कि आपको रजिस्ट्री में जाना पड़ता था, वहाँ पे ऑफिस होता है, उसका रजिस्ट्री कहते हैं उसको, जाके फाइलिंग होती थी. बट अब क्या होगा, अगर आपने इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना है तो आप ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू ही फाइल कर सकते हो. और उस पोर्टल का नाम, उस वेबसाइट का नाम क्या दिया है, इतत-ए-दीवार. Propose amendments to the Consumer Protection E-commerce Rules 2020. तो ई-कॉमर्स क्या है, जो अमेजोन है, ठीक है, जो ये वेबसाइट्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करती हैं, नाइका, अमेजोन, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, तो ये क्या है, ई-कॉमर्स है. ठीक है, ऑनलाइन अपना सामान बेचते हैं. तो वो ई-कॉमर्स रूल्स के अंदर सोचा जा रहा है कि कुछ अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस लेकर आई जाए. राइट. तो इसके अंदर सबसे पहले क्या चेंज लेकर आ रहे हैं. अब देखिए, हमें सबसे पहले फ्लैश सेल का मतलब समझना होगा. वो फ्लैश सेल से रिलेटेड कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं. ठीक है ना. फ्लैश सेल मीन्स अ सेल ऑर्गेनाइज्ड बाय एन ई कॉमर्स एंटिटी एट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड प्राइसेस. अब देखिए, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ नाइका का, या अमेजोन के ऊपर भी जब हम जाते हैं तो नाइका की पिंक फ्राइडे सेल, रिपब्लिक डे सेल, ये सब होती है ना, तो हमें रिड्यूस्ड प्राइसेस पे सामान मिलता है और वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, इस डेट से लेके इस डेट तक सेल होती है. राइट. एंड बहुत ही रिड्यूस्ड प्राइस पे हमें सामान मिलता है. राइट.
तो पढ़ लेते हैं। फ्लैश सेल का मतलब यही होता है, मीन्स अ सेल ऑर्गेनाइज्ड बाय एन ई कॉमर्स एंटिटी एट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्राइसेस। बहुत ही कम प्राइसेस पे जब सेल ऑर्गेनाइज करी जाती है, हाई डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं, और एनी अदर सच प्रमोशंस और अट्रैक्टिव ऑफर्स फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। इस डेट से लेके इस डेट तक सेल है on selective goods and services or otherwise with an intent to draw large numbers of consumers। जब सेल ऐसे लगाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लैश सेल। अब इससे रिलेटेड क्या चेंजेस लेकर आई जा रही है, देखिए बैन नहीं करी जा रही है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि फ्लैश सेल जो है ये बैन कर दी जाएगी, नहीं, इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज हो रही है, वो बैन करी जाएगी। वो क्या है, इफ सच, यहाँ पे क्या है, इफ सच सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रॉडुलेंटली इंटरसेप्टिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यूजिंग टेक्नोलॉजिकल मीन्स। अब इसका मतलब मैं ये जो कह, मतलब ये कुछ फ्रॉड कमिट करना चाहते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, एंड उसके थ्रू ये फ्रॉड कमिट करने के बाद मतलब एक फ्लैश सेल कंडक्ट करेंगे वो, एंड उसमें फ्रॉड कमिट करते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। क्या फ्रॉड कमिट करते हैं, विद एन इंटेंट टू इनेबल ओनली अ स्पेसिफाइड सेलर और अ ग्रुप ऑफ सेलर्स मैनेज बाय सच एंटिटी टू सेल गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन है, ठीक है, या फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट बहुत सारी एंटिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर भी करता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, उनका जो इंटेंट है वो क्या है, टू इनेबल ओनली अ स्पेसिफाइड सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स मैनेज बाय सच एंटिटी टू सेल गुड्स। मतलब वो फ्लैश सेल का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि जो उनके थ्रू मैनेज्ड है, जो उनकी मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं या जो उनकी एंटिटीज हैं जो वो मैनेज कर रहे हैं, जो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन मैनेज कर रहे हैं, वो ही सेल कर रहे हैं सब कुछ, एंड बाकी सबको उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। इससे यही समझ में आता है। रूल्स बना के लेके जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है ना। अगर वो कोई लॉ को इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है ना। और वो कोऑर्डिनेट करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर करना होगा हर ई कॉमर्स को विद प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ करना होगा, ठीक है। और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो वो डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट पर। और क्या कर रहे हैं वो, टू इंश्योर दैट द कंज्यूमर्स आर अवेयर अबाउट द एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर बाइंग ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑल सेलर्स ऑन मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटीज एंड ऑल इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटीज टू प्रोवाइड बेस्ट बिफोर और यूज बिफोर डेट, ठीक है ना। बेस्ट बिफोर और यूज बिफोर डेट प्रोवाइड करनी होगी अपनी वेबसाइट्स पर, विच इज अ गुड thing. I think a person would be able to make a informed decision. Ensure that the domestic manufacturers and suppliers get a fair chance and equal treatment on the e-commerce platform. एक filter add किया जाएगा, they'll add a filter मैकेनिज्म होगा टू आइडेंटिफाई गुड्स बेस्ड ऑन कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मान लो अगर कोई मेड इन इंडिया गुड्स प्रोड्यूस नहीं बाय करना चाहता है तो वहाँ पे एक फिल्टर होगा जहाँ पे आप कर सकते हो कि आई वांट टू, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय अ सनस्क्रीन, राइट, एंड यू वांट टू बाय अ सनस्क्रीन दैट इज मेड इन इंडिया, सो यू कैन ऑप्ट सनस्क्रीन एंड देन यू कैन ऑप्ट मेड इन इंडिया, राइट, काइंड ऑफ दिस सिचुएशन। ऐसा सा फिल्टर ऐड किया जाएगा और suggest alternatives to ensure fair opportunity to domestic markets. मेनली मैंने कुछ नहीं किया, इंडिया छोड़ो, मुझे तो बेस्ट सनस्क्रीन चाहिए, ठीक है ना। मैंने सनस्क्रीन किया, वहाँ पे कोई भी सनस्क्रीन आ गई, बट यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली मेंशन होगा कि ये वाली सनस्क्रीन में भी यूएसए में मेड है या फिर जर्मनी में बनी है, बट ये वाली जो सनस्क्रीन है ये इंडिया में बनी है। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे फेयर चांस मिलेगा इंडियन कंपनीज को भी ग्रो होने का, डोमेस्टिक कंपनीज को ग्रो करने का, राइट। उसके बाद वो क्या करेंगे, जो भी नाउ टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर नॉट एडवर्सली इफेक्टिव इन द इवेंट वेयर अ सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू नेग्लिजेंट कंडक्ट बाय सच सेलर इन फुलफिलिंग द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी, प्रोविजंस ऑफ फॉल बैक लायबिलिटी फॉर एवरी मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी हैव बीन प्रोवाइडेड। अब मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास पर्सनली बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसके अंदर लोग किसी भी जो बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट्स नहीं होती है उनसे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं एंड वो कभी डिलीवर ही नहीं होता है एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, जहाँ पे वो जाके ईमेल सेंड कर सके या कोई फ़ोन कॉल कर सके जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके कि हमारे प्रोडक्ट्स ही नहीं डिलीवर हुए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक चीटिंग, राइट। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत by 1 year. His tenure will now end in June 2022. So who is the CEO of Niti Aayog? Amitabh Kant, right? Amitabh Bachchan से याद कर लो यार, Amitabh Bachchan and Amitabh Kant, right? So yeah, this is
That's it for today's video. If you found this video helpful, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी. उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ. एंड इफ़ यू वांट टू वॉच अदर लेक्चर्स, ऐसे ही मैंने मई के सारे लीगल करंट अफेयर्स कवर करे हैं और जून के भी, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. डू विजिट www.loggery.com. वहाँ पे फ्री PDFs अवेलेबल है जो आप डाउनलोड करके उसमें से स्टडी कर सकते हैं. सो या दैट्स इट. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye.